इस वक्त हम दिल्ली के NDMC के कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर स्किल इंडिया को लेकर बातचीत की गई। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलपर्स के तौर पर जो है यहाँ पर जो हिंदुस्तान के कोने कोने से स्टूडेंट्स आए हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, उन्होंने मोबाइल रोबोटिक्स जो है इस तरह की कई चीज़ों को डेवलप किया है। हमारे साथ बात करने के लिए केरला से दो लोगों से बात करते हैं। क्या व्हाट्स योर नेम प्लीज? My name is Muhammad Siad. Siad, what do you develop exactly? Actually, we developed a mobile robot which will be used in the hospitals. So the robot can be deployed in a hospital where humans cannot enter, like any kind of human vulnerability is there. So we made a robot which can be automatically do the tasks which is assigned by its programmer or any operator. So we made a robot to do the task in a day-to-day daily and hazardous task in a hospital environment. Okay, yeah. You are BTech student. Yeah, I am a BTech student. I am from KUSAT, Cochin University of Science and Technology. Currently, I am studying second year Computer Science and Engineering there. Yeah. How could be possible you developed a mobile robotic? Actually, robotics is my passion. I started doing robotics, making small robotics from my very early age, like from 8th standard. It's been almost 6 years from now that I have been to this field. So that's how I developed my idea. Okay, you're a software developer. How do you feel now you are here in Delhi NDMC? Actually, I very feel honored and very pleasure. Because the ESSI has invited and felicitated for representing India in the World Skills Competition, and also I am very happy that I could win the medal for excellence in the World Skills Competition. Okay, here's another guy with us. We talk. What's your name, please? Mohammed Faisal. Faisal, BTech student. Yeah, I'm BTech first year electronics engineer. Okay, you're a hardware actually developer. So how do you feel you are here in Delhi NDMC? Yeah, I'm so happy to getting honored, and yeah, so happy. Yes. So basically, what is your role in mobile robotics? Actually, it's in robotics there is two parts. One is hardware part and software part. I'm doing the hardware part. So I am making the physical parts of the robot, structure, movement. That physical parts of the robot I'm making. So that's it. You got the silver medal here after get the development skills with the ESSCI. So how could it? Can you tell me about your experience? Yeah, the World Skills experience is entirely different. So awesome because it was a life-changing experience. We went to Korea to get training, and that is awesome. Okay, so in this country, in our country, how many various parts you got the training where? We were training in Pune. Okay. How much time? It's 6 months continuous training. 6 months. Yeah. So basically, from when you're starting, how did you start with your career in engineering? Engineering, it's my passion actually. In my childhood, also I started with electronics, repairing that kind of things. Then I want to become an engineer. That's it. What is your age right now? 20. 20. Yeah. When you start your career as an engineer? When you develop mobile robotics, and what was your age when you thought that I have to go engineering? 15, 16 age. Okay. That time I decided that I want to become somebody guide you in your family or the no, it's my interest. It's on my interest. So what is your future? How are you looking at yourself? First of all, I have to complete my degree. Then I have to build my own company, it's a robotics company. That's it. ओके, ये थे दो लड़के जो केरला से आए हैं। इन्होंने अपना इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं और इसी दौरान इन्होंने अपना मोबाइल रोबोटिक्स जो है डेवलप किया। ESSCI जो स्किल्स प्रोवाइड कराता है उन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस डेवलप करने वाले उन स्टूडेंट्स को जगह जगह पूरे देश में कॉलेजेस में जो भी जो है तालीमात जो भी पढ़ाई जो है हासिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केरला से आज दिल्ली पहुँचे हैं। नई दिल्ली NDMC में इस कन्वेंशन सेंटर में इनको दरअसल ये गोल्ड सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो ये कहीं ना कहीं ऑनर की बात है इनके लिए और देश में उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग आज कर रहे हैं उनके लिए भी ये ऑनर की बात होगी कि इसी तरह से वो भी नई नई चीज़ों को ईजाद करें। So we have to set up labs. So we will have to set up labs for thermals, for molding, for chemical compositions, for packaging design. And these labs, if they are set up in the center of excellences, which are next to the industry, right?
then there is train them are unable to make them fully ready. No. So इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल का 10वां साल पूरा हुआ है। ये जो काउंसिल थी 10 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, तो ये बड़ा खुशी का मौका है कि हमने इतनी लंबी जर्नी पूरी की है और हम ये आशा करते हैं कि आगे कई दशकों तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल जो है लोगों को स्किल सेट प्रोवाइड करती रहेगी और देश को उन्नति के पथ पर ले जाएगी। जैसे आज जब पैनल डिस्कशन हुआ था तो ये बताया गया था कि अनफॉर्चुनेटली आज से करीब 20-25 साल पहले इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ट्रीटी की थी, जिसमें सारे प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स थे खास करके वो ज़ीरो ड्यूटी पे आने लगे थे। उससे क्या हुआ कि यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी डिमांड नहीं थी तो लोग बाहर से सस्ते में लाते थे। तो उससे क्या हुआ कि पिछले 10-20 सालों में जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन अब सरकार ऐसी स्कीम्स लाई हैं जिससे वापस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि वो जो स्कीम्स लाई गई हैं, जैसे PLI स्कीम है, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम है, जो मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उससे वापस हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा। और जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा तो वो जो स्किल सेट्स जो हम देते हैं वो लोग बाहर चले जाते हैं, वो यहीं पे काम करेंगे और हमारे देश को बढ़ाएंगे। I feel very happy and excited today to be here, and also very grateful to SK for giving us an opportunity to sign the MOU. I think this is going to be a wonderful beginning where we can reach out to our youth, especially not only to Manipur but the northeastern region as a whole, and also to the neighboring countries. Scaling is very, very important right now, and we really want to prepare our youths for the demands the market is asking for. And I think SK will and the governor of Manipur will have a wonderful journey together. स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो 19 दिसंबर 2012 में उसका गठन हुआ था, और उसका गठन इसलिए हुआ था क्योंकि ज़रूरत थी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर में। जैसे आजकल हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में जो डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए 6 मेजर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो हैं वो साथ में आई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल को जो है बनाया गया। हम लोगों ने अपने 10 साल पूरे किए हैं। इस 10 साल के अंदर में 18.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में ट्रेनिंग दी गई है। हमारे पास में जो है करीब 4,500 से ज़्यादा सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, और हम लोग जो है 577 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं। इसका मतलब कि सिर्फ शहरों में ही नहीं बट गाँव के कोने के अंदर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जा रही है। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ में इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की ESDM कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम चलती है, उसके अंदर में हम लोग कार्यरत हैं, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का इन 10 सालों के अंदर में ट्रेनिंग किया गया है। इंडस्ट्रीज़ के साथ में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि उनको किस तरह के स्किल लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम कोर्सेज़ बनाते हैं और इंडस्ट्री के साथ मिलकर उनको ट्रेनिंग कराते हैं और उनको जॉब्स दिलवाते हैं। इसलिए हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ ऑलमोस्ट 3,000 इंडस्ट्रीज़ के साथ हम लोग काम करते हैं। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पिछले 3 साल के अंदर में नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम आपने सुना होगा, जिसके अंडर में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल के थ्रू जो है वो कार्यरत रहे हैं। आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि 10 साल तो हमारा एक पहला पड़ाव है, बट आने वाले समय में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, IoT, ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर एंड कंपोनेंट्स, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आने वाले समय में बहुत रोज़गार आने वाला है। तो हम बिल्कुल मानते हैं और हमारी जिम्मेवारी है इस बात के लिए कि जो भी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आके काम करें उनको हम स्किल्ड मैन पावर दे सकें। आज इसीलिए हमने पहला पड़ाव पूरा किया, अपना फर्स्ट डिकेड हमने कंप्लीट